Good morning, dear students. I am Sumit. Today we'll be doing the third chapter, Human Reproduction. In today's lecture, we'll be talking about the concept of parturition and lactation. This one is the last topic of the third chapter, Human Reproduction. In the previous lecture, we talk about pregnancy and embryonic development. And during the embryonic development, we saw that many phases are there, like cleavage, blastulation, and gastrulation. And due to these processes, a fully developed fetus is formed. In today's lecture, we basically talk about the process of parturition and the process of lactation. As we know that the gestation period in humans is of about 9 months, and after the completion of 9 months, the fetus is fully developed and ready to deliver, ready to expulse. So the first topic is parturition, and parturition is the process of delivery of fetus, or the process of childbirth is called parturition. This is usually controlled by many hormones secreted by the mother as well as the fetus. During parturition or during the process of delivery of fetus, vigorous contraction of vigorous contraction of uterine myometrium takes place. And this contraction is usually due to the change in the hormonal levels. And in this process, during the vigorous contraction in the uterus or the myometrium or the uterine wall, many hormonal concentration is changed. What happens after the completion of 9 months? The fetus grow in size as well as in weight. As a result, in fully developed fetus, the level of fetal cortisol will become high. कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा. एंड ड्यू टू दिस, the high level of cortisol acts on placenta to stimulate estrogen hormone. As we know that the fetus is connected to the mother through placenta, and placenta also secretes some of the hormone, act as an endocrine gland also, and one of the hormone is estrogen. एस्ट्रोजन हार्मोन जो प्लेसेंटा डेवलप करती है. अब देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन कब सेक्रेट होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन तब सेक्रेट होगा जब बेबी जो है वो मदर की वोम में फुल्ली मैच्योर हो जाएगा. और इसके बाद ये जो प्लेसेंटा है
ये एक हार्मोन सेक्रेट कर लेगी, जिस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली दो तरीकों से काम करेगा। ये किसी के सेक्रेशन को बढ़ाएगा और किसी हार्मोन के अमाउंट को घटाएगा। ये क्या काम करता है? नंबर वन, ये काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल पे। एक हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को लो कर देगा। और एक और हार्मोन पे ये काम करेगा जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ के लिए मेन हार्मोन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। इसके लेवल को हाई कर देगा। The estrogen hormone, which is secreted by the placenta, act in two different ways. In first way, estrogen hormone antagonize the relaxing effect of progesterone. It means it can inhibit the activity of progesterone. And प्रोजेस्ट्रॉन की एक्टिविटी को खत्म कर देगा, प्रोजेस्ट्रॉन की एक्टिविटी को लो कर देगा। और प्रोजेस्ट्रॉन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन? द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज टू रिलैक्स द यूट्रीन मायोमेट्रियम और द यूट्रीन वॉल और द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की वॉल होती हैं, उनको रिलैक्स बनाए रखने का काम प्रोजेस्ट्रॉन का होता है, ताकि क्योंकि ये जो यूट्रस की जो मेम्ब्रेन्स हैं ये रिलैक्स रहेंगी, तो उसके अंदर आसानी से बेबी जो है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन अब बेबी जो है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है। नाउ द टाइम टू एक्सपल्स द बेबी। अब उसके अंदर उसको आराम से रहना नहीं है, यूट्रस से बाहर आना है। तो इस कंडीशन के लिए यूट्रीन की वॉल को अब रिलैक्स रहना नहीं होगा। और रिलैक्स यूट्रीन की वॉल रिलैक्स की वजह से है, यूट्रीन की वॉल जो रिलैक्स है वो है प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। तो इस काम के लिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा से सेक्रेट हुआ, ये एस्ट्रोजन हार्मोन इस प्रोजेस्ट्रॉन के अमाउंट को कम कर देगा और इसकी एक्टिविटी को भी रिटार्ड कर देगा। इससे होगा क्या? नाउ द यूट्रस विल नॉट रिमेन इन द रिलैक्सिंग पोजीशन। अब यूट्रस की वॉल रिलैक्स नहीं रहेंगी, तो इस वजह से यूट्रस में कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो एक काम तो ये कर दिया। दूसरा, हमने कहा था ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस कर देगी, बढ़ा देगी, ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो हाई कर देगी। और ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, अच्छा ऑक्सीटोसिन के लेवल को हाई करने की कैसे? क्योंकि ऑक्सीटोसिन को सेक्रेट करने का काम तो प्लेसेंटा का है नहीं या एस्ट्रोजन का है नहीं। ऑक्सीटोसिन को जो है वो सेक्रेट करने का काम जो है वो करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये क्या काम करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेटेड बाय the placenta induces the expression of oxytocin receptor on uterine wall। तो यूट्रस की मायोमेट्रियम की वॉल में कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स का मतलब क्या है? ऐसी प्रोटीन जो किसी भी चीज को रिसीव कर सकती हैं। जैसे कि हर एक सेल के अपने कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, और जो रिसेप्टर होंगे वो उसी को रिसीव करेंगे। सपोज हमारे घरों पे कोई मेहमान आते हैं, तो हम भी तो उनको जानते हैं। अब हर जो भी आ रहा है वो हमारा मेहमान ही जो क्या होगा, हम केवल उन्हीं को रिसीव करते हैं जो हमारी जान पहचान के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं।
तो उसी तरीके से यूट्रीन की वॉल में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्सीटोसिन को। और जब जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगी क्योंकि ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके थ्रू द ब्लड, क्योंकि जितने भी हार्मोन हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं, यूट्रस में पहुंचेंगी, तो ये यूट्रीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर उसको ग्रैब कर देंगे। सो व्हाट हैपन्स, induces the expression of oxytocin receptor on uterine wall। अब इससे क्या होगा, जैसे ही यहां से सिग्नल चले गया, ये सिग्नल जाएगा एक तो मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और एक फिटस दोनों की ही पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि अब बेबी भी डेवलप हो चुका है मदर के अंदर, 9 मंथ ओल्ड बेबी है, तो दोनों की ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन को। तो आपको इस बात को जरा ध्यान रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो काम करती है। एक तो वो अपने हार्मोन रिलीज करती है, जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे, सॉरी सेक्रेट होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन सेक्रेट होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पार्ट से होंगे। लेट अस सपोज दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, लेट अस सपोज दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरीके की ग्लैंड होती है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो यू हैव टू नो दैट this hormone secreted by pituitary gland is always secreted by anterior pituitary। ये secretion करेगी हॉर्मोन्स का। एंड जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये कभी भी किसी हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करती, इसके पास अपना कोई हार्मोन नहीं होता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है रिलीज हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो आप समझिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो कुछ हार्मोन सेक्रेट करती है, यानी कि अगर ये हाइपोथैलेमस है तो इसने कुछ हार्मोन बनाए, ये हार्मोन डायरेक्ट आके इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं, और जब हाइपोथैलेमस इसे ऑर्डर देता है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे? मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरीकों से काम करती है। पहला तरीका पिट्यूटरी ग्लैंड के काम करने का कि ये अपने हार्मोन सेक्रेट करती है, ठीक है, क्या करती है, अपने हार्मोन सेक्रेट करती है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। और दूसरा काम यह है कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये वो हार्मोन रिलीज करती है जो सेक्रेट हुए थे हाइपोथैलेमस से और स्टोर किए थे पिट्यूटरी ग्लैंड ने। तो ये दोनों ही काम करती है, सेक्रेशन का काम भी करती है और स्टोरिंग का काम भी करती है, और जो इसे स्टोर किया था उसे रिलीज करती है। केवल दो बेसिक हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है और स्टोर हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में और रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और दूसरे का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाउ सो व्हाट हैपन्स, देखिए, ऑक्सीटोसिन रिलीज किए किसने, किसने रिलीज किए, मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने और फिटस की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने। और ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन फॉर पार्चुरेशन, इट एक्ट्स ऑन द यूट्रीन रिसेप्टर। अब देखिए यूट्रीन में ये यूट्रीन में जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है वहाँ पर जाके ये एक्ट करेगा, और इसकी वजह से, इस ऑक्सीटोसिन की लेवल की वजह से क्या काम होगा, ऑक्सीटोसिन का एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन करना। यूट्रीन में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन आएगा,
क्योंकि आपको ये बात पता है, कहा भी जाता है कि चाइल्ड के बर्थ के टाइम ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। मदर को बहुत ही पेन होता है, और कई जगह ये भी बोला जाता है कि करीब 200 हड्डियों के एक साथ टूटने में जितना पेन होता है, उतना ही पेन मदर को बच्चे को डिलीवर करने में होता है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। तो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, अगर एक बार यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो उसी से डिलीवर हो जाए बच्चा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन होने से कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव फीडबैक जाती है फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से मोर एंड मोर अमाउंट में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता चला जाता है। क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे डिलीवर हो जाए बच्चा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन के लिए वी नीड मोर एंड, और मदर नीड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो कंटिन्यूसली देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक गिवन बाय द uterine wall due to uterine contraction, and this positive feedback went back to the posterior pituitary gland to release more and more amount of oxytocin. And due to this, the uterine continuous uterine contraction takes place, and finally इसकी वजह से जो बेबी जो मदर की वोम में है वो एक्सपेल हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ parturition. Another process is lactation. Lactation, as we know that, is the ejection of milk. It is also based on the positive feedback mechanism like this. ये दोनों ही प्रोसेस में, पार्चुरेशन में भी पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ी थी, और लैक्टेशन में भी पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लैक्टेशन, क्योंकि ये इमोशनली भी बेबी और मदर का जो रिलेशन है उसको भी ये इंडिकेट करती है। और मदर जो है वो बच्चे के रोने पे ही लैक्टेशन करना कई बार शुरू कर देती है। सो इसमें क्या होता है, अगर बेबी क्राई करता है या सक करता है मदर के निपल्स को ड्यूरिंग द फीडिंग मैकेनिज्म, तो इससे एक पर्टिकुलर सेंस, एक सेंसरी इनपुट जो है वो डेवलप होता है, और ये डेवलप होके पहुंच जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। ड्यू टू द सकलिंग इफेक्ट और द सकिंग इफेक्ट, एक पर्टिकुलर सेंसरी इनपुट है जो वहाँ से निकल के पहुँचता है हाइपोथैलेमस, मदर के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। और ड्यू टू दिस द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कर देता है, कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर वही बात, पिट्यूटरी ग्लैंड के अभी हमने कहा था दो पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अलग अलग तरीके से काम करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे ही हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन मिला, किसको मिला, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक हार्मोन सेक्रेट कर दिया जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका बेसिक वर्क ही है मिल्क प्रोडक्शन। सो क्या हुआ, जैसे ही बच्चा रोया या बच्चा फीड करने लगा मदर को, सकलिंग इफेक्ट हुआ, सक करने से एक सेंस डेवलप हुई, वो सेंस सीधे मदर के हाइपोथैलेमस में गई। इस सेंस की वजह से हाइपोथैलेमस ने एक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया। ये रिलीजिंग हार्मोन गया पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सेक्रेट कर दिया प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। इसकी वजह से जो मिल्क ग्लैंड हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। सेकंड थिंग अगेन, हाइपोथैलेमस ने दो काम किए, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी में चले गया, और दूसरा ये गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने पहले भी कहा था कि वही हॉर्मोन्स को रिलीज करती है जो सेक्रेट हुए थे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का एक सेक्रेशन है
वो अगेन कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो ये रिलीज कर देगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये ऑक्सीटोसिन का भी हमने थोड़ी देर पहले पार्चुरेशन में भी आपको वर्क बताया था कि ऑक्सीटोसिन का एक ही काम है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये भी क्या करेगा भाई, जो मिल्क ग्लैंड्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और मिल्क ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मिल्क जो है उसका इजेक्शन हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। मदर के मिल्क में सारे वो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उस चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये एक हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड है। और डिलीवरी के बाद 5 मंथ तक ये कहा गया है कि बच्चे को केवल और केवल मदर का मिल्क ही फीड करना चाहिए। और मदर के मिल्क में एक और एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं आईजीए। और ये आईजीए चाइल्ड को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईजीए एंटीबॉडी जो है वो बच्चे को मिलती है मदर के मिल्क से, और आईजीजी डायरेक्टली फ्रॉम द मदर बच्चे को मिल गई थी। So this is all about the topic parturition and lactation. This one is the last topic of chapter 3 human reproduction. इसके बाद हम 4th चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको ये पूरा जो सीरीज ऑफ लेक्चर है 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।